ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ 200 ਫੈਬਰਰੀ ਮੰਥ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੈਸਟ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ GK ਨਾਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 69.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 59.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰੋ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ हैदराबाद ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਚੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 हैदराबाद ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ। ਬਿਕੋਜ਼ हैदराबाद ਦੇ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਜੁਬਲੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀ ਆਫ हैदराबाद ਐਂਡ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਕਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 69.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 42.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ 231 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ 69.2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਲਗਭਗ, ਜਿਹਦਾ 42.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਸ, ਕੌਣ ਨੇ? ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ LPG ਹੈ ਨਾ, ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਤਾਂ 96.9% ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਮੇਂਦਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਅਬਾਊਟ 27.5 ਕਰੋੜ LPG ਯਾਨੀ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਹੀਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। याद रखना है एग्जाम च पूछा जा सकता है। और तकरीबन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा 96.9% अकॉर्डिंग जनवरी 2020 तक के पहुंचा चुके हैं। ठीक है, चलिए विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना? लगभग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ? ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ
डिप्टी सीएम का नाम तुसी कमेंट बॉक्स में दसोगे ताकि सारे स्टूडेंट जान सकन। वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइज। फटाफट दसो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर दुष्यंत चौटाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन्हों की नवी पार्टी JGP, ठीक है, और जिसका निशान चिन्ह चाबी है, याद रखना है। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मार्क ऑफ सक्सैसफुली 100 डेज प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, ठीक है। तो याद रखना है 6000 रुपया इसका अमाउंट होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखा आप। क्वेश्चन नंबर अपने को चौथा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम 10 तो 14 फरवरी की गल हैगी है। तो थीम की है दोस्तों, यदा एग्जाम च बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हाल ही दे विच एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया सीगा। तो इसका करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थीम है दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप थोड़ा बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल जे थीम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं और आप कई बार इन्हों इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने की वजह नाल इहो जे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। और याद रखो कि खास तौर पर डेज और थीम के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करना है। और इहदा सीगा थीम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। रिजर्व बैंक की गल करते हैं, इसका हैडक्वार्टर मुंबई है और इन्हों के गवर्नर कौन है, कमेंट करके मैंने जरूर दसना है। गोइंग टू कनैक्ट यानी लगभग एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कंडक्ट करने की योजना बनाई हुई है इन्होंने। और वो योजना सी 10 फरवरी तो लैके 14 फरवरी की सी और जिसकी थीम रखी सी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है पंजवां क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी मेजर हु डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया है, ठीक है। इकादे वास्ते AK-47 अगर स्टॉप करने वास्ते, ठीक है, बुलेट फ्रॉम ए डिस्टेंस लैस दैन 10 मीटर्स, ठीक है। तो यदा सही आंसर है किन्ना ने यह हेलमेट डिजाइन किया, तो यदा सही आंसर होगा अनूप मिश्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखना है, मेजर ने इंडियन आर्मी के अनूप मिश्रा, इन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट होएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, बुलेट प्रूफ हेलमेट है। यह की रोकेगा AK-47 बुलेट राउंड नो डिस्टेंस लैस दैन 10 मीटर अगर हैगा या, ठीक है। तो याद रखना है। और ये भी तुहानू याद रखना पएगा कि इंडियन आर्मी का डेवलप जो अंडर यह हैगा, यदा हैगा अभेद्या, याद रखना है कि अभेद्या प्रोजेक्ट, याद रखना है अभेद्या प्रोजेक्ट, ठीक है। तो तुहानू मैं कोशिश करांगा कि हर वक्त सारे फैक्ट सही दसांगा। स्क्रीनशॉट तुसी लेंदे जाओ जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल। बाकी PDFs वगैरह तुहानू रेगुलरली टैलीग्राम च मिलणगे। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स नाल ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स नू ज़्यादा तो ज़्यादा जानकारी जुटाने का मौका मिल जाए। अबिजल सफीर हु रिसेंटली हैंडेड 22 मंथ्स बैन कर दिता गया है। इन्होंने फेल होए ने डॉप टेस्ट चों एसोसीएटेड विद द विच स्पोर्ट यानी केड़े खेल तो संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर होएगा टेनिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अमेरिकन टेनिस प्लेयर ने उसका नाम है अबिजल सफीर, 38 साल के ने मेरे दोस्तों। तकरीबन 22 साल का डोपिंग बैन कर दिता गया है इंटरनेशनल टेनिस फैडरेशन। हुण तुसीं मैनूं दसोगे कि ITF का हैडक्वार्टर कित्थे है, यानी इंटरनेशनल टेनिस फैडरेशन की गल हो रही है। इन्होंने बैन कर दिता है और बैन अनाउंस किया गया है। यह फील्ड डोपिंग टेस्ट यानी 2019 के विच US यूनाइटेड स्टेट ओपन मैच होया सीगा, उस दरमियान किया गया सीगा, ठीक है। तो यह बैन कदों तक रहेगा, ये रहेगा सितंबर 2021 तक, ये भी तुसीं याद रखना होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां। अज दी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7वां आ, रोजर खान हु पासड अवे रिसेंटली, जो कि हाल ही दे इन्हां दी डैथ हो चुकी है। तो ये किस फील्ड चो संबंधित ने, तो दोस्तों यह एक राइटर ने, ठीक है, याद रखना होएगा। राइटर सीगे और अमेरिकन ऑथर ने ये रोजर खान, ठीक है, रोजर काहन, ठीक है, याद रखना है। इन्होंने खास तौर तो बेस्ट सेलिंग बुक के नाम तो जाना जाता है 1972। द बॉयज ऑफ समर पास्ट अवे हो चुके ने। नर्सिंग होम एट ए, याद रखना होएगा ये भी तुहानू कि कित्थों बिलोंग करते सीगे, ये सीगे US दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। क्वेश्चन नंबर है 8वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग एन 18 डेज लॉन्ग
एक भारत श्रेष्ठ भारत कंपेन है अक्रॉस इंडिया प्रमोट द कल्चर यूनिटी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 3 ਬਿਲकुल करेक्ट आंसर होएगा। याद रखना होएगा कि 18 दिन लंबा एक भारत श्रेष्ठ भारत कंपेन है, यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बल्कि ऑर्गेनाइज किया गया सी, ठीक है ऑर्गेनाइज किया गया सीगा। ये याद रखना होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ 28 फरवरी 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ और किहदे द्वारा ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है अपने कोले 9वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अच्छी प्रिपरेशन साडी इस लैवल की होनी चाहिए है दोस्तों, ये भी याद रखना होएगा कि खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ जिदा ही मैं क्वेश्चन पढ़ा तो माइंड के अपना ऑप्शन स्ट्राइक करना चाहिए। फिलहाल आंसर देने की हमेशा कोशिश करो और एक अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन करो, एक योद्धा बन के प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, एग्जाम क्रैक होवे एक नहीं होवे अलग किस्सा है, बट ये सोच के करो कि मैं आई एम द नेक्स्ट विनर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दे विच कोचस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया मेल कैटेगरी 2019 दे विच किन्ना नूं दिता गया है। 5 ऑप्शनस दिते हुए ने तुहानूं, तो सही आंसर इहदा होएगा याद रखना होएगा पुलेला गोपीचंद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला आ। ठीक है ऑप्शन नंबर पहला आ पुलेला गोपीचंद है, चीफ नैशनल कोच फॉर द इंडियन बैडमिंटन टीम रिसीव किया इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोचस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द मेल कैटेगरी 2019। ये 3rd एडिशन होया सीगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एनुअली अवार्ड का। याद रखना होएगा कि पहले इंडियन कोचस ने जिन्होंने ये सम्मानित किया गया है लाइफ अवार्ड ओलंपिक कमेटी द्वारा। ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखियो इसनों। चलिए 10वां क्वेश्चन है या 10वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल जा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन एंड विद गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया कंडक्टेड 4th एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन 2020 इन विच इंडियन सिटी। भारत के किहड़े शहर दे विच मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जॉइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नाल मिल के गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया दे नाल मिल के 4था एडिशन ईस्ट एशिया समिट हैगा या कॉन्फ्रेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन कंडक्ट किया या। तो दसना इन्हां चों 5 चों किहड़ा करैक्ट ऑप्शन होएगा। ऑप्शन नंबर पहला ऑल राइट, पहला आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों जे तुहानूं प्रॉपर सैशन समझ आ रहा है तो कमेंट्स दे विच बस इन्ना लिख दिओ आहो समझ आ गया है। ठीक है चलिए दोस्तों 2 डेज़ का सीगा ये, याद रखना होएगा किन्ने दा सी 2 डेज़ का सीगा। 4th एडिशन ऑफ यानी जिसनों आपां EAS कहने हैं ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस होया सीगा मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशनल। ठीक है याद रखना है कि ऑपरेशन 2020 ये चेन्नई दे विच होया सीगा तमिलनाडु, याद रखना होएगा। और खास तौर पर तुहानूं ये भी पूछा जा सकता है कि किने ऑर्गेनाइज किया सीगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस तो पहला कुछ होर एडिशनल तुसी तुहानूं मैं बहुत ही टफ चैलेंज देवांगा। चैलेंज नंबर पहला हैगा या कि तुसी ये दसना है कि ऑस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया की गल करते हैं तो इंडोनेशिया के एग्जाम के संबंध च तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि इत्थों की कैपिटल किहड़ी ने। ठीक है काठमांडू है या कोई होर है। दूजा ये हैगा कि इंडोनेशिया दे प्रेजिडेंट का नाम की दसना है तुसी, क्योंकि तुहानूं पता है कि राष्ट्रमंडल खेल होए सीगे। चलो मैं दस देना जोको विडोडो। चलिए तुसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दसो, फटाफट दसो कमेंट करके दसो फटाफट। चलिए 11वां क्वेश्चन हैगा या क्वेश्चन नंबर 11th है विच इज़ द थीम ऑफ 23rd यानी 23वीं एडिशन होया सीगा नैशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस 2020 जो कि मुंबई विखे होया सीगा महाराष्ट्र च। इहदा दसो कि थीम की सीगा। दोस्तों थीम सीगा इहदा इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है यानी भारत 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे विच कन्वर्ट होने की गल बार बार रखी जा रही है, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए, डिजिटल इंडिया के जरिए, मेक इन इंडिया है और खास तौर पर भारत कनैक्ट के जरिए पिंडां नूं भी एक नैशनल लैवल पर जोड़न की गल रखी जा रही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन की है क्योंकि अज दे सीरीज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ने और कोशिश करांगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सैशन दे विच कवर कर लिए। भारतीय आर्मी ने कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग विद ए प्राइवेट एंड डेवलप्ड लो कॉस्ट गन होस्ट
ਲੋਕੇਟਰ ਨੇਮ ਡੈਸ਼ 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 ਅਨਵੀਲਡ 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੈਫ ਐਕਸੋ ਦਾ 2020। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਥ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਿਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, यानी इंडियन आर्मी कॉलेज मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਡਿਵੈਲਪਡ ਗਨਸ਼ੋਟ ਲੋਕੇਟਰ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਪਾਰਥ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮਚ ਚੀਪਰ ਦੇਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨਸ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਅਨੂਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਥ ਗਨਸ਼ੋਟ ਲੋਕੇਟਰ, ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, इन्हें जो किड़ा स्टेट गवर्नमेंट हैगी है जिसने कि रीडिंग मिशन एक लॉन्च की है स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट है रीडिंग मिशन 2020 अनकरेज करने वास्ते हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स नू पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों इहदा जो सही आंसर होएगा हरियाणा, बिल्कुल करैक्ट आंसर है, हरियाणा ने यह मिशन शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। 5th एडिशन मिलिटरी एक्सरसाइज अजय वैरियर एक कंडक्ट होया है सलिसबरी प्लान बिटवीन इंडिया और किहदे विच है। तो हमेशा याद रखना कि अजय हमेशा भारत की गल देखी वर्ल्ड दे विच सब तो ज़्यादा ताकतवर कंट्री किहड़ी है, अमेरिका आ। और भारत जो मिल जाता है तो अजय मतलब विजेता, तो भारत भी उहदे विच की विजेता होएगा। तो इहदा मतलब है कि आपां की लिखांगे, ऑप्शन नंबर दूजा है नहीं ऑप्शन नंबर तीजा, जरा माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। 5वां एडिशन होया सीगा जॉइंटली मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड किंगडम आर्मी, याद रखना यूके, ठीक है। यूके और यूएस बिल्कुल सेम है, सो दैट आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो मैं करैक्ट करता है इहदा ऑप्शन नंबर तीजा बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। तो तुसीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये चीज़ां सारियां याद रखनियां होणगियां। चलिए 15वां क्वेश्चन नंबर हैगा या पेंशन स्कीम के तहत कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेंशन स्कीम के तहत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनक्रीज किया मिनिमम नैट वर्थ क्राइटेरिया पेंशन मैनेजर फ्रॉम 25 करोड़ टू कितना करता है, 25 करोड़ टू कितना करता है, 50 करोड़ रुपया कर दिता गया। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੱਸੋ और ਇਹਦੇ डायरैक्टर कौन ने, वो भी कमेंट करके दसो फटाफट। इन्होंने की किया नैशनल पेंशन जो NPS है इनू डबल कर दिता गया, पहला 25 करोड़ सी हुण 50 करोड़ कर दिता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन की अपने कोले पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018 ਅਤੇ 19 प्रिपेयर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस केड़ा इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल हैगा ONGC। तो ONGC का मतलब है कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी याद रखियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के संबंध च इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17वां। इंडिया टू होस्ट द 13th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस पार्टीज कन्वर्जन द माइग्रेटरी स्पेसिस सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है फरवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। यह विच इंडियन सिटी ਕਿਹੜੀ इंडियन सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, तो गांधीनगर बिल्कुल गुजरात ਦੇ ਵਿਖੇ है, याद रखना होएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करैक्ट आंसर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने मिनिस्टर ने प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने अनाउंस किया सीगा कि 13th कॉन्फ्रेंस पार्टीज हो रही है कन्वर्जन ऑन द कन्वर्जन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस वास्ते है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एनवायरमेंट ट्रीटी सपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत यह होस्ट करन जा रहा है गांधीनगर विखे किथे गुजरात के 17 तो लेके 22 फरवरी के होया सीगा, याद रखना होएगा। एग्जाम के संबंध ये भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखांगे आपां। विच इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइन पैक्ट लार्सन एंड टोब्रो हाईटैक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर की होएगा, याद रखना होएगा आइडिया फॉर्ज, बिल्कुल करैक्ट आंसर आइडिया फॉर्ज, ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट होएगा, ठीक है। याद रखना होएगा तुहानूं ये एग्जाम के संबंध अगर पेपर के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। दसना नाम ब्लास्टिक मिसाइल विच बीइंग टू डिवेलप बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्राइक रेंज ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक है। तो यदा मतलब नाम दसना है 200 किलोमीटर की यदी रेंज होएगी, स्ट्राइक रेंज है।
ਤਾਂ DRDO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ISRO ਦੇ ਹੈ, DRDO ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਨਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨਾਂਸ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, बलास्टिक मिसाइल है और इहदा नाम दिता गया है। इस तो पहला अपने कोले एक प्रहार सीगी, तकरीबन 150 किलोमीटर की रेंज सीगी उहदी। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप, क्वेश्चन नंबर 20 है। नैक्सट क्वेश्चन 20वां है, इंटरनेशनल डे फॉर वीमन एंड गर्ल साइंस 2020 है। उहदी थीम सीगी इन्वेस्टमेंट इन वीमन एंड गर्ल इन साइंस एंड इनकलूसिव ग्रीन ग्रोथ। तो सैलीब्रेट किया गया सीगा ये किहड़े डे, तो याद रखना है फरवरी 11। दोस्तों तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो कि वीमन डे कदों हुंदा आ, ठीक है। वीमन डे आपां सैलीब्रेट कीता है, तुसीं दसना है कि कमेंट करके ये किहड़े दिन हुंदा आ। सेकंड दसना बिमस्टेक जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज विद द थीम ऑफ ए कल्चर हेरिटेज साइट दैट सफर सेवर डैमेज इन द अर्थक्वेक। तो ये देखो, एक तो तुहानूं थीम याद रखनी है, और जिहड़ियां हर साल जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एक्सरसाइजिस होंदियां ने ये तुहानूं अंग्रेजी दे विच याद रखनी है, ठीक है। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फ्लडिंग और स्टॉर्म ये दसना है कि किहड़े स्टेट विच कीता गया है। उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। किहड़ा आंसर सही होएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला उड़ीसा बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, ये भी तुसीं याद रखियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, किहड़ी भारतीय स्टेट हैगा या कि उसने इस फिलहाल एक मिशन, ठीक है, क्लाइम फिस्कॉन 2020 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वास्ते एंड ओशियन हेल्थ इन फैबररी 2020। इहदी जो थीम सीगी क्लाइमेट चेंज इफेक्टिव अडेप्टेशन फॉर द सिक्योर फ्यूचर ਦੇ तहत ਇਹ ਕਿਹੜੇ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ केरला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट आंसर होएगा, ठीक है। तो हुण तुसीं ये भी याद रखना होएगा कि फिलहाल केरला दे विखे कित्थे होया सी, ते केरला दे विखे कोची दे विच होया सीगा, ठीक है। कोची दे विच याद रखना है 11 तो लैके 14 फरवरी दे विखे होया सीगा, और इहदी थीम क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्टिव अडेप्टेशन फॉर ए सिक्योर फ्यूचर दे संबंध च याद रखना होएगा, ठीक है। और एक कॉन्फ्रेंस हुई सीगी फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी ड्यू टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आप, क्वेश्चन नंबर है अपने कोले 23वां, किहड़ा स्टेट हैगा या कैबिनेट अप्रूव किया है कि ग्राउंड वाटर एक्ट 2020। ਇਹਦਾ मतलब की है कि इंप्रूव करना द फॉलिंग लैवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, मतलब धरती का पानी हेठां जा रहा है, ਉਹਦਾ इंप्रूवमेंट करना, उन सशक्त बनाना, ठीक है। तो याद रखना ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा यूपी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करैक्ट है। साडे पंजाब सूबे की सरकार ने इहो जिहा कुछ भी नहीं बजट दे विच कीता आ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे, उस तो पहला की जानकारी तुहानूं मैं दस देवां, पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरां की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गिल्ज मिंटर के ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके तुसीं पंजाब पटवारी इस तो इलावा कि कानगो है या बहुत सारे होर भी पेपर्स ने, उन्होंने प्रिपरेशन के संबंध में तुसीं मॉक टेस्ट सीरीज बुक कर सकते हो, तो नाल तुसीं ई स्टडी मटीरियल भी बुक कर सकते हो। बहुत सारिया टेरो ई बुक्स तुहानूं अवेलेबल करवाइयां जा रही ने, तुसीं डाउनलोड भी कर सकते हो। यूनीअन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज़ किया नोटिफिकेशन, प्रिंटिंग 1 रुपये का नोट होएगा जिहड़ा उसके उपर 2020 जो प्रिंट होना है, दसना है कि सिग्नेचर किहदे होणगे। 1 रुपये के नोट के उपर यानी किहदे नोट साइन होंदे, तुसीं याद रखना है। 1 रुपये के नोट के उपर जो सिग्नेचर होंदे है वो होंदे है सैक्रैटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस के सैक्रैटरी होंदे ने उन्हां दा हुंदा है। तो उन्हां दा नाम की, उन्हां दा नाम हैगा आ अंतानु चक्रवर्ती होएगा, ठीक है। तो याद रखना है अंतानु चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करैक्ट आंसर है, ये भी तुसीं याद रखियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां, और थोनों मैं ये भी दस देना है, उस तो पहला तुहानूं मैं जानकारी ये भी दस देना है कि तुसीं याद रखना, ये भी याद रखना है कि देखो 1 रुपये नोट मिशन 2020 के तहत है, इन्हां दे जो सैक्रैटरी ने उन्हां दा नाम की अंतानु चक्रवर्ती है। रैक्टेंगुलर जो लेंथ होएगी वो 9.7 तो लैके 6.3 होएगी, और पेपर मैड 100% कॉटन होएगा, और ये तकरीबन 110 माइक्रोन थिन होएगी, यदि थिकनेस होएगा। वेट होएगा दा ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, 90 ग्राम पर स्क्वायर मीटर का होएगा, और कलर इहदा की होएगा पिंक ग्रीन कलर होएगा, और डिज़ाइन है सराउंडिंग विल बी सुगर समर्थ करवाया जाएगा, ठीक है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन रिग होएगा है। तो बस ये चीज़ां याद रख लो, पूछा जा सकता है, सब तो ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है अज की सीरीज का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਲੀਗ 2020 ਜਿੱਤਿਆ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु रैप्टर्स बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने वर्ल्ड चैंपीयनशिप ब्रोंज मैडलिस्ट बी प्रणीत एंड वर्ल्ड सैकेंड थाई इजू यिंग नू हरा के यह चैंपीयनशिप जीती है। याद रखना होएगा 2020 का टाइटल प्रीमियर बैडमिंटन लीग है वो जितया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा आप फटाफट। दूजा क्वेश्चन नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन की है, कैबिनेट गिव्स द इन प्रिंसीपल अप्रूव किया इन्फ्लूशन ऑफ कैपिटल अमाउंट कितना है? 3 पब्लिक सैक्टर जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने, उन्होंने नाम है, एक तो है कि OICL यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यदा जो सही आंसर की होएगा तो 2500 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 है विच स्टेट पुलिस हैज इम्प्लीमेंटेड द ऑपरेशनल, याद रखें कि ऑपरेशन नकाई, याद रखना है, हाँ जी, अलॉटिंग द यूनिक मैंबर ने ये ऑटो रिस्का ड्राइवर और कर्ब क्राइम। सिंपल जा क्वेश्चन तुहानूं मैं दस दिना कि किहड़ा सूबा आ जिथों दी एक अथॉरिटी ने एक ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम दिता गया है और खास तौर पर ऑटो रिक्शा वाले ने उन्होंने एक खास तौर पर एक मैं कहांगा कि एक टोकन दिता गया है। तो दसना कि किहड़ा सूबा है। सब तो पहला तो मैं तुहानूं सिंपल जा क्वेश्चन दसा, इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश है। हुण सुनो, SSP है, SSP उन्हों का नाम है काला निधि निथानी। इन्होंने अनाउंस किया है गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के विखे कि उत्तर प्रदेश के विच ये लॉन्च करन जा रहे हैं असी ऑपरेशन नकेल। ठीक है, एक तो ऑपरेशन नकेल है, बल्कि नकाई की थां नकेल रख लियो तुसीं, ऑपरेशन नकेल है। और ये की है कि ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर है ना, उन्होंने अलॉटेड किया जा रहा है कि यूनिक 4 डिजिट नंबर होएगा। ठीक है, एक टोकन होएगा और ड्राइवर्स नूं तकरीबन उन्होंने ट्रेस किया जाए और ओही तकरीबन ड्राइवर्स ने जिहड़े कि अपने ऑटो रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, जिन्हां कोले यही यूनिक नंबर होएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 28 में विच इंडियन बैंक हैज़ वन द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव अवार्ड 15th इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 किनू दिता गया? तो याद रखना इसका सही आंसर होएगा साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। ये 15वां एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस सीगा जो कि 2020 दे विच होल्ड होया मुंबई विखे महाराष्ट्र दे विच, और साउथ इंडियन बैंक नू यह अवार्ड दिता गया वा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29वां क्वेश्चन की है विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन एरोस्पेस प्राइवेट फर्म टू बिल्ड द फॉरेन ओन्ड सैटेलाइट टू द कस्टमर्स टू द स्वीडन एंड फ्रांस? तो सही आंसर ਇਹਦਾ की होएगा? ऑप्शन नंबर होएगा दूजा अनंत टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर होएगा। अनंत टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर दूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। एरोस्पेस फर्म अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद इन्होंने साइन किया डील किया है 6 फॉरेन ओन्ड सैटेलाइट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्राइवेट फर्म हैगी कि मेकिंग सैटेलाइट टू द ग्लोबल कस्टमर्स वास्ते सिग्नेचर साइन किया इन्होंने। ठीक है, तकरीबन होर भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, सारी जानकारी तुहानूं एडिशनल फैक्ट दी मिल जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा कि वर्ल्ड फॉरमोस्ट फाइनेंशियल साइट द बेकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट विच इंडियन बैंक टॉप्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट इंक्रीजिंग द ब्रांड वैल्यू अमंग द ग्लोबल बैंक्स? किहड़े बैंक्स नाल होया टाई अप? तो दोस्तों 5 ऑप्शनों के करैक्ट होएगा इंडस, याद रखना है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, इंडसइंड बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31वां है, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा। जीडीपी बारे पूछा गया है, इंडियन जीडीपी 2020 के तहत कितना हो सकता है या कितना रखा गया है? तो यह आंकड़ा तकरीबन 6.1% रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नैक्सट क्वेश्चन की अपने को अगला क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी ने लॉन्च किया है कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम पार्टनरशिप नेशनल कमीशन फॉर वीमन? ठीक है, साइबर पीस फाउंडेशन एंड प्रोवाइड द डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग 1 लाख वीमेन इन 7 स्टेटा के करन जा रहे हैं। तो खास तौर पर दसना है कि किहड़े यह ऑर्गेनाइजेशन है? तो फेसबुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है। याद रखना होएगा कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम के तहत नैशनल कमीशन फॉर वीमन वास्ते साइबर पीस फाउंडेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड लिटरेसी ट्रेनिंग 1 लाख वीमन नूं दित्ती जाएगी 7 स्टेटा के और किहदे द्वारा किया जा रहा है? किहड़ी टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनी हैगी है? तो यह फेसबुक याद रखना होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਟ ਭੋਪਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਫ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਬਲਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਆਲਸੋ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਰਿਚ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਥੀਮ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਡਕਟਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਲੇਨਸ ਐਂਡ procedures handled various agencies during the hijack threats using naval Darniner aircraft INS Dega held in which city, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਔਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡੇਗਾ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 36ਵਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਡ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਟਰੈਕਸ ਬਿਲਡ ਇਨ ਫੇਮਸ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਲੀਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਡ ਦਸੰਬਰ 2020। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37ਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ MOU ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਉੜੀਸਾ ਔਨ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ HDFC ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ RBI ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। चलिए अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा भारत का किहो जिहा किहड़ा खिलाड़ी है कि जिन्हें यह प्राइज जितया है। तो इसका करैक्ट आंसर की होएगा, 5 ऑप्शनों चो देखना है कि आप राइट आंसर इसका की होएगा। तो मनप्रीत सिंह बिल्कुल करैक्ट आंसर है, मनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर चौथा करैक्ट आंसर होएगा। 27 साल के ने, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ने यह विमन, ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये संबंध च पूरी जानकारी मैं तुहानूं डिटेल वाइज देना चाहांगा, हेठां तुसीं देख सकते हो, ठीक है। यह जिवें कि FIH मैन है, एक गोलकीपर ऑफ द ईयर 2019 है, विंसेंट, यह वरांच नूं दिता गया, बैल्जियम दे ने। और वीमन गोलकीपर की गल करते हैं तो इन्हां दा नाम रिचल लिंच आस्ट्रेलिया दे ने ये, ठीक है। और कोच ने जिहड़े वो हैगे ने कॉलिन बैच आस्ट्रेलिया दे ने ये, तो वीमन कोच ऑफ द 2019 ईयर दे ने ये एलिसन रेजिना एना आस्ट्रेलिया दे ने ये, ठीक है। तो भी तुहानूं याद रखना होएगा, पूरा स्क्रीनशॉट लै सकते हो तुसीं सैशन दे विच, या तुसीं अच्छे तरीके नाल सैकेंड टाइम इहनूं देख सकते हो। नेम द परसन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, ठीक है। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड के चेयरमैन ने उन्होंने अपॉइंट किया गया है। दसना है कि इन्हों का सही आंसर की होएगा, तो जी नारायणन बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा, जी नारायणन, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द स्पेस साइंटिस्ट जी नारायणन हैज़ नेम एज द चेयरमैन ऑफ NICL, ठीक है। तो इसरो के यही साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस वास्ते नोमीनेट किया गया। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप, रैपिड फायर होएगा हुण अपना। नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस NASA, ठीक है, रोबोट विच इज गोइंग टू स्टडी मिनरोलॉजी ऑफ मार्स ड्यूरिंग द ईयर 2020 रोवर मिशन, उसका नाम दसना है मिशन का। तो सुपर काम है बई, इसका नाम याद रख लो, ठीक है। NASA की फुल फॉर्म याद रखना है, नैशनल, ठीक है, यह NASA ही कहने आप, NASA की फुल फॉर्म हैगी है एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटअप किया है,
ठीक है। न्यू लेजर टॉटिंग हो रॉबर्ट का नेम है, ਇਹਦਾ सुपर काम ਇਹਦਾ नेम दसिया गया है, मार्स ਤੇ स्टडी करेगा। ठीक है, तकरीबन ਇਹ 20 फुट हैगा या 7 मीटर आप कह सकते हैं। वे टू द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट टू फाइंडिंग द साइन ऑफ फोलोलाइज्ड एंड माइक्रोबल लाइफ वास्ते है। ठीक है, रेड प्लेनेट होएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लांगे आप। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੋਟਸਵਾਨਾ, ਬਿਲकुल करेक्ट आंसर होएगा बॉट्सवाना। ठीक है, चलिए भाई बॉट्सवाना बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी दोस्तों ਇਹਦਾ सही आंसर होएगा ਬੋਟਸਵਾਨਾ करेक्ट आंसर है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬਲਕਿ ਅੰਡਰ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ? ਕੌਣ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੀਰ ਬੈਨ ਸੁਬਾਤ। याद रखना है मीर बैन सुबात, बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर दूजा या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स कैन बी प्रिंटेड इन इंडिया? ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम की गल करते हैं कि डोमिनेशन जो करेंसी है नोट्स इन इंडिया प्रिंटेड किए जा सकते हैं तो 10,000 है। ठीक है, किन्ने ने? 10,000 है। आरबी का एक्ट है 1934 का, वो तहत यानी डोमिनेशन हायर दैन 10,000 कैनोट भी इशू 10,000 तो ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना है, एग्जाम से थोड़ा पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वीमेन मैच रैफरी ग्लोबल इवेंट आ क्रिकेट दे विच किहड़े सीगे? इहदा नाम है याद रखना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो लक्ष्मी, GS लक्ष्मी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना होएगा। फर्स्ट मैच रैफरी सीगे वीमन। 46 नंबर क्वेश्चन हैगा या वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट लोकेटेड? बैंकिंग मैनेजमेंट लोकेटेड कित्थे है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होएगा पुणे महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूजा है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा कि वेयर इज अ लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन लोकेटेड? यानी भारत का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कित्थे है? तो तुसीं याद रखना होएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश विखे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुहानूं एग्जाम च पूछा जा सकता है। तकरीबन 1366.33 मीटर प्लेटफॉर्म की जानकारी इत्थे दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पूछा हाईएस्ट एल्टीट्यूड साइट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द साइंटिस्ट हैव द ऑब्टेन द क्लाइमेट रिकॉर्ड फ्रॉम आई स्कोर? तो इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर चौथा है अपने को। ठीक है, तो दसाउपू बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। दसाउपू ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज की सीरीज का नैक्सट क्वेश्चन है कि अमित जो पंजाल है एक किस खेल तो संबंधित रखते हैं? दोस्तों ये किस खेल तो संबंधित रखते हैं? ये बॉक्सिंग तो रखते हैं। ठीक है, याद रखना होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 साल के ने पूरी जानकारी इत्थे तुहानूं डिटेल वाइज साझी दे रखी है, तुसीं अच्छे तरीके नाल रीड आउट कर सकते हो। फर्स्ट इंडियन काम टू द सिल्वर मैडल इन्होंने चैंपीयनशिप जित्तिया सी 2018 कॉमनवैल्थ दे विच। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते दे रखा है। अंतिम क्वेश्चन का आंसर तुसीं कमेंट क्वेश्चन तुसीं खुद रीड करना है और आंसर भी तुसीं खुद देना है। स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट कमेंट करके मैनूं दसो। दोस्तों कुछ क्वेश्चन अगे पिछे जरूर होए है, माइट भी ड्यू टू द टेक्निकल रीजन। होप करते हैं कि बहुत अच्छा सैशन तुहानूं लगेगा। शेयर कर दिओ, लाइक कर दिओ। मिलते हैं फिर नैक्सट, तब तक ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।